اس چیز کے اوپر کیا رپلائی کروں. خاتون ہیں, ورنہ اگر انہوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں, انہوں نے جو اس مافیا کے ساتھ مل کر وہ مجھے میری بچی کے اگینسٹ ڈیفیمیشن کر رہے ہیں. ایسی تمام ویڈیوز ہم نے آلریڈی ان کے لنکس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی ہیں, تو ایکشن تو ڈیفینیٹلی ہوگا ان کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2000 ایک ایسے گینگ کے ہاتھ چڑھ چکی ہے جو میڈیا اور قانون سے کھیلنا بہت اچھے سے جانتے ہیں. قانونی طور پر 2000 کے ایک اغوا کو نکاح قرار دینے کا ڈرامہ مکمل طور پہ فلاپ ہو چکا ہے, اور اس ڈرامے کے فلاپ ہونے پر میڈیا میں پروپیگنڈا چلانے کی باقاعدہ طور پر انہوں نے مہم شروع کر دی ہے. اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں ہم 2000 کے والد مہدی علی کاظمی کے ساتھ. وہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کس طرح سے ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس طرح سے ان کے کیس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر, امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. سر, آئے روز اسکرین پر آپ کے رشتہ دار جو ہیں بڑے نظر آ رہے ہیں. کبھی 2000 کی دوست جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ان میں سے حقیقی اور اصل میں آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ السلام علیکم ماریہ سسٹر. دیکھیں, میری اس کیس میں جتنی بھی ایجنسیز انوالو ہیں اور جو ادارے اس میں کام کر رہے تھے, وہ تو شروع دن سے ہی میرا فیملی ٹری پورا نکال چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے نادرا کا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے, اس کے اندر آپ جو ہی کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں تو اس کا پورا فیملی ٹری سامنے آ جاتا ہے. میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد ہوں, میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے, تو یہ تو ان کا جھوٹ یہیں سے پکڑا جاتا ہے. سیکنڈلی, اگر وہ کزن سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں تو ایسا یہ سب بے بنیاد الزامات ہے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے انہوں نے بہت ساری من گھڑت سٹوریز بتائیں, اسی طرح انہوں نے ایسی ایک کریٹ کی سٹوری. تو اس کے بعد وہ جو پھپھو, بچی کی پھپھو یعنی میری بہن, اور پتہ نہیں کون کون وہ نکال رہے ہیں, مجھے نہیں پتہ وہ کب پیدا ہوئے سب لوگ. تو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کرائے کے لوگ کہیں بھی آپ کو مل جاتے ہیں. تو سب ایسے ہی جھوٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ہم اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے, لیگل ایکشن لیں گے. اور ویسے بھی عدالت کے اندر جب کیس ہوتا ہے تو آپ کو, اگر آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ کون سا رشتہ دار آ گیا بھائی. تو یہ سب تو ان کے جھوٹ ہیں, اور جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں, جیسے آپ کو بھی پتہ ہے. مہدی صاحب, کیا آپ کے رشتہ دار واقعی لاہور میں رہتے ہیں یا یہ سب جھوٹے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے خود ہی اپنے سوال میں میرا جواب دے دیا ہے ماریہ. اچھا, آپ ابھی ایک چیز کا اندازہ کریے کہ مجھے خود نہیں پتہ میری بچی کہاں ہے. میں تو چیخ کے یہ بیان کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں کہ میری بچی مجھ سے ملوائی ہے. مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے. میں نے اسے ٹی وی پہ دیکھا ہے, اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ میری گلی کے لوگ یا میرے رشتہ دار ان کو اسی علاقے, اسی گلی محلوں میں ان کو مل رہے ہیں. تو معاملہ مشکوک جو ہے وہ تو ظاہر ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ سب جھوٹے لوگ ہیں, اور جب ہم ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر انہیں یہ جھوٹے لوگ سامنے لانے پڑیں گے. تو اس وقت معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ میں تو ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں, نہ وہ محلے کے لوگ ہیں, نہ وہ رشتہ دار ہیں, اور نہ ہی وہ میرا کوئی بھائی بہن ہے, جو کہ ہے ہی نہیں میرا. تو یہ سب فیک لوگ انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں. میں اب ان کے, اللہ بھلا کرے سب لوگوں کا, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. دیکھیں, میری بچی کا معاملہ ہے, اور اس کے اندر اس میں طرح طرح کی کنفیوژنس پھیلانے کے لیے وہ ایسے وہ کر رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ جو سامنے آ کر یہ اوپنلی بولتا ہے اسے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کل کو یہ چیز, اللہ کا جو سسٹم ہے وہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس میں کل کو کوئی بھی وہ ان کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. تو میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ایسے جھوٹ بولنے سے گریز کیا جائے. ان تمام جھوٹے لوگوں اور جعلی خبریں پھیلانے والوں کے لیے آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ ماریہ, ڈیفینیٹلی چونکہ وہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
मामले को गलत रंग दे अच्छा। रहे हैं, झूठे रिश्तेदार और झूठी वीडियोस, और पता नहीं, मैं तो यकीन करें मुझे लोग मैसेज करके बता रहे होते हैं कि यार आपके मतलब ये बोला ये बोला ये बोला, तो वो मुझे बड़ा दुख भी होता है। और मैं सोचता हूँ कि लोग किस यानी एक्सट्रीम किस हद तक हो सकते हैं, एक झूठ बोलने की हद तक भी अगर आप लें तो वो किस हद तक जा सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ को। तो डेफिनेटली मेरी लीगल टीम इसके ऊपर एक्शन लेगी। फ़िल वक्त हमारा पूरा फोकस जो एक्चुअली में जो है वो केस के ऊपर है। उसके बाद जो है, बल्कि उसके दौरान ही या उसके बाद जैसे ही वो बेहतर समझेंगे वो इसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे। वीडियोस जो हैं, ऐसी तमाम वीडियोस हमने ऑलरेडी उनके लिंक्स और डाउनलोड करके रख ली हैं। तो एक्शन तो डेफिनेटली होगा इनके ऊपर। हर फील्ड के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अगर आप लोग जो हैं वो सच का साथ दे रहे हैं, देखिए आप मेरा साथ इस वजह से दे रहे हैं, अगर आप लोग कि जाहिर सी बात है आप लोगों ने मुझे असेस किया है और दूसरी पार्टी को भी असेस किया है, आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे प्रूफ्स देखे हैं और उनके प्रूफ्स देखे हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरा साथ देना शुरू किया है या एटलीस्ट आपने सच का साथ देना शुरू किया है, तो आप एक्चुअली में अपने पेशे से इंसाफ कर रहे हैं। आप मेरी पर्सनैलिटी या मेरी बच्ची या इस चीज़ को साइड पे रख दिया जाए, मेरी जगह कोई भी होता, अगर वो सच्चा होता, ये केस होता, तो आप इसी तरह उसका साथ दे रहे होते। तो आप लोग बेसिकली अपने पेशे से इंसाफ कर रहे हैं। तो कुछ लोग, आपको पता है हर पेशे के अंदर, हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि वो अपने जिन्हें काली भेड़े कह सकते हैं। तो वो, अब मैं क्या कहूँ कि अगर उन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हैं, उन्होंने जो इस माफिया के साथ मिलकर वो मुझे, मेरी बच्ची के अगेंस्ट डिफेमेशन कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, उन्हें इन चीज़ों के ऊपर जब हम एक्शंस लेंगे तो डेफिनेटली उन्हें इसका प्रूफ देना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। और जवाबदेही बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जैसे भी एक फ़ेक स्टोरीज़ क्रिएट की हैं, फ़ेक लोग, बल्कि एक अजीब सी बात यह है कि वो तो फ़ेक लोग लेकर आ गए हुए हैं कि ये रिलेटिव्स हैं। तो ये इन्हें सब साबित करना पड़ेगा, और जान तो बड़ी आसानी से नहीं छूटती इस चीज़ में, आप समझ सकती हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ तो सिर्फ मेरी ही बच्ची घर नहीं बैठी, पूरा पाकिस्तान के बच्चे स्कूल नहीं गए थे। और मार्च, बल्कि फरवरी के एंड पे, फरवरी 2020, उस दौरान कोविड आया पाकिस्तान में। फ़र्स्ट केस मेरा ख्याल है 27-28 फरवरी या समथिंग ऐसे तक स्कूल शट डाउन कर दिए गए थे। और स्कूल जो था वो पूरा तमाम क्लासेस प्रमोट हुई। उसके बाद पूरा एक साल, पूरा 1 ईयर स्कूल तो ऑफ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगे। उसके बाद अगली प्रमोशन भी इसी तरह पूरे पाकिस्तान को मिली है। और आपको तो पता है इसमें बहुत सारे लोगों ने तो बोर्ड के अंदर जो बेचारे बच्चे जो थे वो भी हर्ट हुए थे। तो जिन्होंने हायर एजुकेशन करनी थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। तो उसके बाद जो था, जब सेकंड ईयर यानी तकरीबन 13-14 महीने गुजर गए तो स्कूल्स लगने शुरू हुए, लेकिन वो पार्शली लग रहे थे। शुरू में आपको याद होगा 9वीं 10वीं की क्लासें लगी, फिर नीचे क्लासेस आनी शुरू हुई, फिर वो थोड़ा दिन लगते थे, उसके बाद फिर ऑफ हो जाता था, फिर कोई कोविड की दूसरी लहर आ जाती थी, कभी तीसरी लहर आ जाती थी। तो वो सारे इंसिडेंट के अंदर स्कूल्स मुतासिर हुए, बच्चे मुतासिर हुए, और बहुत से बच्चे घर में स्टडी करते रहे। मेरी बच्ची भी घर में स्टडी कर रही थी। तो घर में देखिए बात ये होती है, अब जैसे आप अगर बच्चे को स्टडी करवाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है, खुसूसन ऐसी सिचुएशन में जब लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ चल रही हो। तो ये एक अनफॉर्चुनेट वो थी सिचुएशन। इसके अंदर जो था वो स्कूलिंग सिस्टम मुतासिर हुआ था। जो लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर आपके दुआ ज़ारा के, आपकी फैमिली के मुतालिक झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ शुरू से सुने, जो मैं टीवी चैनल्स पर बैठकर भी बोलता रहा हूँ, तो मैंने ये बताया कि मैंने जब ये इंसिडेंट हुआ, मैंने सेकंड डे पुलिस को अपने तमाम फ़ोन, क्योंकि पुलिस
आप अब आप कहेंगी सेकंड डे, अब उसका भी रीज़न ये बताता हूँ। पुलिस तो आई ही रात 2:30 बजे थी। अगले दिन जो रेंजर्स की इंटेलिजेंस आई, मैंने उनको अपने फ़ोन ख़ुद से दिए, और उसी दिन पुलिस भी दोपहर में आई थी, यानी 17 को। तो मैंने उन्हें अपने फ़ोन नंबर ख़ुद से दिए, मुझे उन्होंने तो बोला भी नहीं देने के लिए। मैंने उन्हें कहा कि यार देखो, दोनों पॉइंट सोचते हैं, एक अगवा का पॉइंट और एक सेकंड पॉइंट जो वर्स्ट केस सिनारियो होता है। आपको तमाम चीज़ें हमें ख़ुद सामने रखनी चाहिए। हम इसे सामने रख के सोचते हैं कि ये जो यानी मेरे नंबर्स मैंने उन्हें प्रोवाइड किए, उन्होंने उनका कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाल के वो मेरे पास आए। उन्होंने उसमें से तमाम मैसेजेस, अगर आप CDR आपने तो देखे होंगे कि उसके अंदर ना सिर्फ कॉलिंग आती है बल्कि मैसेजेस भी आते हैं। तो वो उनमें ना कोई एक्टिविटी कॉलिंग के ऊपर थी, ना जो थी एक्टिविटी मैसेजेस के ऊपर थी। अगर हमें एक्टिविटी मिलती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इतना लंबा घसीटा जाता। ये अकल में आने वाली बात नहीं है। हमें फ़ोन के अंदर तो कोई एक्टिविटी मिली नहीं। सेकेंडली, बच्ची के पास तो कोई मोबाइल था ही नहीं, और मैं उसे देता भी नहीं था। मैंने उसे जो iPad दिया हुआ था, अगर आप मेरा इंटरव्यू शुरू से सुने तो वो यही है कि वो iPad नॉन सिम्ड iPad था। उसके अंदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं था, और FIA वाले जो थे, और ख़ाली FIA ही नहीं, दूसरी एजेंसीज़ भी थीं, और इवन CPLC और पुलिस, ये सब डिपार्टमेंट उसमें सर्च कर रहे थे। तो ऐसा कोई पॉइंट होता तो हमें डेफिनेटली कोई हिंट मिलती। अगर हिंट मिलती तो हम उसे एज ए पॉजिटिव वे से उसके पीछे जाते, और इस इशू को इतना लंबा ना खींचा जाता। आपको याद होगा कि जब बच्ची का निकाहनामा सामने आया तो वो 25 तारीख़ थी। मेरी इंसिडेंट जो मेरी बच्ची का हुआ था वो 16 तारीख़ को हुआ था। इट मीन्स 9 दिन तक हम ब्लाइंड रहे थे। तमाम पुलिस, तमाम डिपार्टमेंट्स इसके सिलसिले से ब्लाइंड थे। 9वें दिन जो निकाहनामा TV पे आया 25 को, तो वो वही दिन था जब पता चला कि ये निकाह वाला इसमें डाला गया है। अगले दिन बच्ची का TV पे मीडिया के ऊपर जो था वो इंटरव्यूज़ आए। फिर उस दिन मजिस्ट्रेट के हवाले से वो डेवलपमेंट हुई, और उसके बाद से बच्ची लापता है। तो ये इंसिडेंट तो उस वक्त तक खींचा ही नहीं जा सकता था अगर हमें इस सिलसिले से कोई इसमें क्लूज़ मिलते। हमें क्लूज़ इसीलिए नहीं मिले कि चूँकि बच्ची का कोई कॉल डाटा रिकॉर्ड इस किस्म की कोई चीज़ थी ही नहीं। अब रही बात उन ख़ातून की, तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। अल्लाह पाक उनको हिदायत अता करे। देखिए, मकाफ़ात अमल जो होता है आपका, अगर आज आप किसी के साथ, आज अगर मैं आपके साथ बुरा करूँगा तो कल मेरे साथ वही बुरा होगा। तो अगर मेरे साथ वो ऐसा कर रही हैं तो अल्लाह पाक उनको हिदायत अता करे। मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह के मकाफ़ात अमल जो निज़ाम है अल्लाह पाक का, जो उससे डरना चाहिए। सेकेंडली, लीगल एक्शंस भी उनके अगेंस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली इसको देखेंगे। इस पर मेरी जो लीगल टीम होगी वो इसको डिस्कस करेगी, इन चीज़ों को देख रही है और वही इसको लेकर चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपका ये आंसर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैंने बड़े जामे तरीके से आपको समझा दिया कि जो ये इस तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। काज़मी साहब, क्या आपको लगता है कि दुआ ज़ारा को अगवा करने वाले गैंग की मीडिया में ये सोची समझी पेनिट्रेशन है? अगर वो डिफेम इस तरह से कर रही हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। वो ख़ुद भी खातून हैं, और किसी बच्ची जिसकी एज सिर्फ 13 साल 11 महीने थी उस वक़्त इंसिडेंट के टाइम पर, तो यकीनन ये एक गैर अखलाकी बात है। उन्हें ये सोचना चाहिए, वो ख़ुद भी खातून है। अब मैं इस चीज़ के ऊपर क्या रिप्लाई करूँ। वो खातून है, वरना डेफिनेटली आंसर किया जा सकता था। तो सेकेंडली, बच्ची का कि मैं बच्ची को मारता पीटता था, ये एक बिल्कुल गलत किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। जितने यूट्यूबर्स आए, इवन TV चैनल्स वाले आए, उन्होंने मुझे देख के कहा कि यार ये पॉसिबल, ये तो आपको देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैंने उन्हें भी यही कहा कि यार मुझसे नहीं पूछो, मेरे घर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं आप उनसे पूछें कभी मेरे घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई हो, मार पीट की आवाज़। क्योंकि देखिए, मारने पीटने लड़ाई झगड़े की आवाज़ें, अगर किसी घर में लड़ाई होती है तो वो
माशाल्लाह इर्द गिर्द के घरों में जाती हैं। तो जब उन्होंने ये देखा, ख़ुद से पूछा, बल्कि कुछ चैनल तो कवरेज करते रहे आके, हमारे जो महल्लेदार थे, जो मेरे बिल्कुल क्लोज़ नेबर्स थे, तो उन सब ने ये कहा कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़, और ये गलत है। तो बाकी डिफेमेशन जो आपने बोली वो उन्हें ख़ुद सोचना चाहिए। वो ख़ातून है, किसी बच्ची के मुतालिक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और बच्ची की शादी जो है वो एक लीगल एज है उसके लिए। उसके लिए वफाकी शरई अदालत में भी ये मौजूद है कि बच्ची सिर्फ एडल्ट नहीं होनी चाहिए, मेंटली एडल्ट भी होनी चाहिए। उसके लिए दोनों चीज़ें हैं। और उसके लिए उन्होंने 18 साल की एज रखी हुई है, जैसे सिंध में भी एज 18 है। तो ये सब चीज़ें होंगी। और डेफिनेटली हम जब कोर्ट में ये जाएंगे, अगर हमारे अगेंस्ट वो आते हैं, क्योंकि तो हम इसे प्रूव करेंगे सारी चीज़ें। और बाकी मैं लीगल अपनी जो है वो स्ट्रेटजी तो शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरे लायर्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम इसे लीगली कोर्ट के अंदर फ़ाइट करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं रहीं, जिस तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हम लोग विन करेंगे, क्योंकि हमारी जो बेस है वो सच्चाई के ऊपर है जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, मुझसे क्वेश्चंस पूछे। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बच्ची के मामले को आप लोग देखते रहिए और हक़ का साथ देते रहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सैयद मेहदी अली काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद थे, दुआ ज़ारा के वालिद। और हम यही अपील करते हैं कि एटलीस्ट किसी के दर्द को समझें, किसी की तकलीफ़ को समझें। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ, किसी वालिदैन के साथ ये सब कुछ ना करे, लेकिन किसी की बच्ची को इस तरह से उसके लिए गलत बोलना, वालिदैन की तज़लील करने की कोशिश करना, कभी फुप्पी, कभी दोस्त, कभी झूठे रिश्तेदार, कभी झूठे मोहल्लेदारों की कहानियाँ सुनाना, अल्लाह को भी जवाब देना है। कुछ खुदा का खौफ करें, किसी के दर्द को समझें। अगर आप किसी के दर्द को नहीं समझ सकते, किसी का दर्द कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। वालिदैन को एक दफ़ा देख लें जिस कर्ब और दर्द से वो गुज़र रहे हैं। अगर आप इस तरह से झूठी बातें करेंगे, उनकी तज़लील करेंगे, उनको ज़लील करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए बुरा कहेंगे, तो यकीन माने, बिल्कुल सही कहते हैं कि वो अल्लाह की अदालत भी होती है। फिर जब मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिए जाएंगे ना, तो फिर फ़ैसले करना, फिर आप लोगों का अपने आप को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है। तो खुदा का खौफ करें, कुछ रहम खाएं और अपने आप को किसी की जगह पे रख के देखें और सोचें कि अगला इंसान कितने कर्ब और तकलीफ़ से गुजर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।